edition. Welcome back. A day after a dismembered body was found in the national capital, the quest to find the killers of the unidentified man has cross-border terror plot. Now, according to the police, the two suspects who have been arrested possibly killed the victim to convince their handlers that they were committed to anti-India activities. Delhi Police Special Cell's Additional Commissioner of Police Pramod Kushwaha says the accused and their handlers based out of Pakistan and Canada had right-wing leaders on their radar. इन इस मॉड्यूल को जिसमें कि एक का ओरिएंटेशन जो है इस्लामिक टर्ज्म का, दूसरे का ओरिएंटेशन जो है क्रॉस बॉर्डर जो गैंगस्टर्स हैं जो बाहर बैठे हुए टेररिस्ट बन गए हैं, हज डाला, वहाँ से कंट्रोल हो रहे थे। ये आदमी को मारा जिसको उन्होंने बलसवा डेयरी के एरिया से पिक किया था, और उस आदमी को मार के उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर जो इनके हैंडलर्स हैं उसको दी, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड हैं। और नेचुरली ये जो सिलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने एक हिंदू को ही सिलेक्ट किया जो कि नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होना था, ताकि बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड है, एंटी इंडियन है। हिंदू पर्सनैलिटीज जो है वो टारगेट पर थी। राइट विंग हिंदू लीडर्स डेफिनेटली। According to the police, suspects Jagjit and Naushad even got funding. They received funding after demonstrating their capability to kill. While Naushad's handlers are suspected to be cross-border elements, ISI handlers, Jagjit is linked to Canada-based Khalistani terrorist Tala. The Delhi police investigation shows that these two terrorists had beheaded and chopped off hand of the deceased into multiple pieces just to prove this point to their handlers that they are capable enough to carry out another big terror attack in the country. The target was not only those right-wing leaders who have been new pattern which has been taken by the ISI to mix people, terrorists who are from different religion, to carry out these kind of assassination attempt, which is certainly a horrific thing. What Delhi police is saying that this was just a trial mode for these suspects, for which they killed one of the person, but their main target was a VVIP person who was from right wing, so that the country can be put into flames and there can be communal riots following to which. So there are clear signs of an anti-Hindu plot at play in this case, orchestrated by the ISI. The fact that a Hindu victim was chosen as the target and involvement of anti-India forces, coupled with the finding that this murder was just a trial for a bigger attack, clearly indicates that right-wing leaders were on target. But instead of condemning it, Congress has come out to doubt the investigation itself. Well, through social media, a lot of radicalization is happening, and then need to be checked, and then Delhi police has to be active, and other intelligence sources has to be active, so that all such youth who get swayed by social media radicalization should be nabbed and taken care, because there is a complete ecosystem which is working on target killing and is radicalizing the youth. I have a doubt about Delhi police investigations and the charges they frame. What happened in North Delhi, Delhi riots, what happened? Most of the charges which police framed against one particular community failed. So everybody knows that who demonstrated their brandishing sword, lathi, danda, all these things. Police can get anything confessed by third degree. All right, we have a national spokesperson of the VHP, Mr. Vinod Bansal, with us. But my first question is to political analyst Asif Sohail. Sohail साहब, पहले तो ये बताइए, isn't this alarming? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? You know, these are two men who, as per the police, have shown them the recording, the video that they recorded of the brutal killing, of the beheading, of chopping that man into as many as 8 pieces, have confessed to the police that they're inspired by the ISIS. Madam, it's a very serious concern, it's very alarming. It's our security is on stake. Another hand, you know, it's a failure of the police department intelligence there in Delhi.
दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज गोइंग अंडर द नोज. सो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है सारे हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पहले है और यहाँ के नागरिकों की सिक्योरिटी पहले. और रही दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कई सवाल पहले भी आ चुके हैं, कई राइट्स में हो या कई मर्डर केसेस में चार्जेस प्रूव नहीं कर सके. देखिए, मैं इसको एक इंटरलिंक नहीं कर रहा हूं. जब हैदराबाद के अंदर प्रॉफिट के ऊपर एक बीजेपी के एमएलए ने गलत बताया था, उन्हें भी जेल भेजाया गया, और जिसने सरतन से जुदा की बात की थी एक माइनॉरिटी का बंदा, उसको भी जेल भेजाया गया. तो इन्हें चाहिए, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से सीखे, एक इनसे सीखकर हैदराबाद की पुलिस से ये सीखना चाहिए हाउ टू कंट्रोल द क्राइम, हाउ टू कंट्रोल दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज. ये हर थोड़े दिन को दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ एक मर्डर केसेस हो रहे हैं, कई लोगों को टुकड़े करे जा रहे हैं. इतना सारा क्राइम कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं तो कि ये दिल्ली पुलिस, ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए. पहली बार में ऐसा हादसा बाहर आना ही नहीं चाहिए. बट सोहेल साहब, जब कांग्रेस जैसी पार्टी बाहर आके बोलती है कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती ये कन्फेशन निकलवा लिया होगा, 3rd डिग्री टॉर्चर की बात करती है, तो क्या वो गलत नहीं है? इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की जगह यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति चल रही है. मैडम, इट्स टू अर्ली कि हम ये सिर्फ सस्पेक्ट बताया जा रहा है, इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है. बट क्यों दिल्ली के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, क्यों? ये एक क्राइम कैपिटल बन चुका है. नहीं, तो एक साइड पे तो आप यहाँ की दिल्ली पुलिस से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है. दूसरी साइड पे जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें विश्वास नहीं है. सर देखिए मैडम, हमें हिंदुस्तान के कानून के ऊपर, यहाँ के सिस्टम के ऊपर, लॉ के ऊपर हमें विश्वास है. ठीक है, हम कोई पुलिस को हम जो सो अलग उससे नहीं देख रहे, बट कहीं ना कहीं गलती हो रही है. एक कलेक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए. मैं कंप्लीटली एक ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सारे कई अच्छे ऑफिसर्स भी हैं वहां पे, बट वहां पे इंटेलिजेंस का क्यों फेलियर हो गया? इतने दिन मर्डर होकर ये आदमी को टुकड़े कर कर फेंका गया था, अब तक क्यों ढूंढे नहीं? अब ये जब अरेस्ट होते हैं तो पता चल रहा है, तो ऐसे कई लोगों के खतरे हो रहे हैं. सर, आप दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाने भी चाहिए कि ऐसा क्यों होने दिया गया. बट जब इन्वेस्टिगेशन चलती है या कोई टेरर लिंक निकलता है, तो यही कांग्रेस के नेता हैं जो या तो उसे गलती कहते हैं, या तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं कर पाई है, या कहते हैं कि ये जबरदस्ती कन्फेशन निकाला गया है. तो ये आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना एक तरफ से. विनोद बंसल जी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं आपको यही बता रहा हूं. सुनिए मैडम, सोहेल जी, आ रही हूं मैं आपके पास. दूसरे पक्ष की भी बात सुन लेते हैं. लेट मी ब्रिंग इन बंसल साहब. बंसल साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सोहेल जी की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो जो है ना, ये क्राइम को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो उस एक्शन के विरोधी भी लोग खड़े हो जाते हैं. आप देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है. मैं कहता हूं चलो दिल्ली पुलिस ने गलत किया कि सही किया, इन्वेस्टिगेशन सही है कि नहीं है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. बट द क्वेश्चन इज दैट ये तो फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और इस्लामिक जिहादी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. नो डाउट, हमने भी कई बार आवाज उठाई है. दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हैं जो कि दिल्ली पुलिस की छवि को भी धूमिल करने लगे हुए हैं. लेकिन ऑन द सेम लाइंस, जिस तरह का जो स्पेशल सेल ने जो कई बार काम किए हैं, स्पेशल सेल के स्पेशल प्रोटेक्शन के कारण या स्पेशल फोकस के कारण, मैं कहूंगा, ये जो अभी जो आज जो टेरर ब्लास्ट हुआ है, एक तरह से वो जो पुलिस ने जो डिस्क्लोज किया है, वो उसकी बात हो या पहले भी कई अनेक टेररिस्टों को उन्होंने पकड़ा है. I appreciate the way the special branch of the Delhi police and the crime branch of the Delhi police is working on it. But ये है कि देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह का जब वो डिस्क्लोजर होता है पुलिस के द्वारा, तो उस सब घटनाओं पर बजाय ये कि उनको कंडेम करने के, ये लोग जो है उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं. आप देखिए, ये तो आतंकवादियों के हाथ तो जो है स्ट्रांग करने वाली बात है ना जी. आप दिल्ली पुलिस को कंपेयर कर रहे हैं हैदराबाद पुलिस से. अरे पुलिस है भैया, भारत की पुलिस है, कोई पाकिस्तान की पुलिस नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, जहां तक आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए, हैदराबाद में जब सरतन से जुदा के नारे लगे थे, मुनव्वर फारूकी को जो रेड कार्ड पर वेलकम देने के बाद में कितने हिंदुओं के ऊपर हमले हुए थे, उसमें किसी में कोई गिरफ्तारी हुई क्या कोई जेल गया क्या? वो जो जिस तरह से लफ्जियात की घटनाएं और हत्याओं की घटनाएं, पूरे वो उससे रक्त रंजित है इतिहास उसका, अपना स्टेट का, उस समय नहीं बोलेंगे ये लोग. लेकिन खैर, वो स्टेट वाइज पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं. आज आवश्यकता इस बात की है कि टेरर जो प्लॉट है जिसने भी किया है,
जिसने भी ये कहानी रची है, जिसने भी मनगढ़ ये जो हत्याएं की हैं, निश्चित रूप से इसको कंडेम किया जाना चाहिए और अक्रॉस द पार्टी लाइन करना चाहिए। इससे ये क्यों बचना चाहते हैं भाई? ये क्यों सर नहीं कहते सोचिए कि कि ये जो दो लोग हैं किसी के इशारे पे भी अगर काम कर रहे थे, इनके हैंडलर्स भी अगर पाकिस्तान में है तो एक आईएसआईएस लिंक तो है, पर उन्हें खुश करने के लिए हत्या का वीडियो बनाया गया, हत्या का वीडियो उन्हें सेंड करा गया और जानकारी ये भी आ रही है कि 5 लाख रुपए इनाम में मिले ऐसा करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अपने कमिटमेंट को। तो दैट्स माय क्वेश्चन मिस्टर सोहेल, यू नो दिस इज वरीसम एंड इट मस्ट बी कॉल्ड आउट। तो ये लेकिन इसके ऊपर जो सफेद है वो सफेद, जो काला है वो काला क्यों नहीं बुलाया जा रहा है सर? मैडम, ये हम ग्रे एरिया में क्यों बात करते रहते हैं कि हाँ दिल्ली पुलिस ने शायद अपना काम नहीं किया, पर जो गलत है वो गलत है। क्रिमिनल्स नहीं है सर, ये टेररिस्ट है। देखिए मैडम, एक और बात मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जुर्म होता है चाहे इस कहां बात पर को लेकर कहीं पर भी हो। एक सेकंड बंसल साहब, आई मैं आपके पास आ रही हूं, आ रही हूं, एक बार उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए जो आपने कहा है उसको। सोहेल साहब, मैडम, दिल्ली की पुलिस बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर आती है और बंसल साहब ने कहा कि तन से जुदा के ऊपर जब हैदराबाद में तो बराबर अरेस्ट किया गया और उन्हें पीडीएफ दिया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हैदराबाद कमिश्नर से आप सीखिए थोड़ा, आपकी दिल्ली पुलिस को भिजाइए। देखिए एक साथ मिलकर, एक हिंदुस्तान का स्टेट ही है दिल्ली भी, तो एक सुनिए आपको, अरे ऑन रिकॉर्ड है, आप हैदराबाद की बात की जाए और लगाकर स्पेशली अगर एआईएमआईएम की बात की जाए तो एग्जाम्पल सेट करने का बनता ही नहीं है सर। उनके खुद के नेताओं ने खड़े होके धमकी दी है, मारने की धमकी दी है कि इस चौराहे पे लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए, और किसी ने कुछ नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल तो हम नहीं दे सकते हैं। मैडम, आप अगर मुझे बात करने देंगे तो मैं जवाब दूंगा इसके ऊपर, बगैर मुझे इंटरफेयर मत करिए। सुनिए आप बंसल जी, एक सेकेंड देखिए, कई देखिए, एक तो खुलेआम शादी प्रज्ञा ने पर तुम चाकुआ तेज करो मारने की बात की, कई बीजेपी वीएचपी आरएसएस के लोगों ने खुली धमकी दी है मारने की, पर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चाहे हिंदू मुसलमान कोई नहीं डरेगा। सुनिए और सुनिए आप मेरी बात, सोहेल साहब पुलिस जो बता रही है, कहा जा रहा है कि ये हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स को टारगेट करने की कंस्पिरेसी थी, ये पुलिस ने कहा है। और अगर कहा है तो क्या हमें उस पर डाउट रखना चाहिए, क्या हमें उस पर सवाल उठाने चाहिए, या हमें उस पर जांच करनी चाहिए? इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं और सारे हिंदुस्तानी बराबर ठहरेंगे, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो चाहे कोई भी धर्म के लोग रहने दो। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा भारत अहम है और यहाँ के जो लोग रहते हैं हर धर्म के लोग रहते हैं, हम उनके लिए। सोहेल साहब आपकी बात सुनिए, मिस्टर बंसल आई हैव टू रैप अप, आप बताइए। देखिए कृष्ण, बात यह है कि बार बार बीजेपी को मैं वही बोल रहा हूं मैडम, इसके ऊपर एक सीरियस, लेकिन उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं करी कि आईएसआई के जो लोग हैं लगातार हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और लगातार हिंदुओं को फोकस कर रहे हैं, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलेगा। आप देखिए कि ये इनकी ये स्टेटमेंट जो है ना, इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान ताली बजा रहा होगा। आईएसआई के जो गुर्गे हैं जो भारत में बैठे हुए, तो वही पॉइंट है सर कि क्या मैसेज दे रहे हैं हम, क्या संदेश भेज रहे हैं, इनके लिए लड्डू फूट रहे होंगे जी। हम अपने एनिमी की ओर क्या संदेश भेज रहे हैं, अपने आप की एजेंसीज पे, अपने आप की पुलिस पे सवाल उठा के, while you know the radical elements involved here must be called out. You have a Congress leader who comes out to question the Delhi police. These terror links have not been drawn by the Delhi police. These terror links, as per the Delhi police, have been confessed by the accused in the case. But the Congress maintains that this is the third-degree torture strategy that the Delhi police has adopted. Quite worrisome. Let's see how this plays out and what comes of the interrogation of these two accused, who the Delhi police claims has clear terror links. I'll have to leave it at that, gentlemen. Thank you for joining us on the second debate this evening.